Bismillahirrahmanirrahim. Today we have to see the topics. First of all, we will see image location by lens equation. Then we will see sign convention for lenses, application of lenses, mean the practical use of lenses in different optical instruments. We will see the structure and function of camera, slide projector and photograph enlarger. Students, all these topics are very much important regarding examination point of view. So you people have to focus on these topics with the help of diagrams. Now we have to see image location by lens equation. So for this you have to focus on the diagram along the text as well. So let an object OP is placed in front of a convex lens at a distance P. मीन जो डिस्टेंस है उसका लेंस से वो P है, ठीक है. अरे P are parallel to the principal axis after refraction passes through principal focus F, right? As you can see in the diagram. Another ray PC meets the first ray at point P dash after passing through optical center C, as it is clear in the diagram, right? So this process is repeated for the other points of the object. A real and inverted image O dash P dash is formed at a distance Q from the lens. यानी इमेज का जो डिस्टेंस लेंस से है वो Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपने याद रखना है. Now we have to see the lens formula, the relation between the object and image distance from the lens. यानी ऑब्जेक्ट का जो लेंस से डिस्टेंस है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज का जो लेंस से डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं. इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला. यानी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं लेंस फार्मूला. और ये किसके इक्वल है? 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q. This equation or formula is valid for both convex and concave lenses. However, necessary sign convention should be followed while using this equation to solve numerical problems related to lenses. यानी कि जैसे हमें पता है कि कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस में इमेज वर्चुअल होता है तो उस केस में जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगी और जो क्यू इमेज डिस्टेंस है लेंस है वो भी नेगेटिव होगा. ये बात हमने याद रखनी है. Now we have to see the sign conventions for lenses. First of all, we have to see focal length. Focal length represented by small f is positive for a convex or converging lens and focal length f is negative for a concave or diverging lens. Now we have to see object distance represented by small p. P is positive if the object is towards the left side of the lens, it is called a real object, and P is negative if the object is towards the right side of the lens, it is called a virtual object. Image distance represented by small q. Q is positive for a real image made on the right side of the lens by real object and Q is negative for a virtual image made on the left side of the lens by real object. Now we have to see the applications of lenses. So first of all we will see the use of camera and the use of lens in camera. So a simple camera consists of a light proof box. यानी इसमें लाइट का यूज़र नहीं होता, ठीक है. विद अ कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट एंड अ लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक. यानी सामने लेंस रखा होता है लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर और उसके बैक में हमने फिल्म रखी होती है जिसके ऊपर इमेज बनता है. तो लेंस फोकसेस इमेजेस टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन टू द फिल्म. तो उस इमेज को वो ऑब्जेक्ट को फोकस करके उसका इमेज बनाता है फोटोग्राफिक फिल्म पे. डायग्राम में देखिएगा कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट टू बी फोटोग्राफ्ड और लेंस है सेंटर में रखा हुआ और उसके बाद उसका इमेज बना हुआ है रियल इन्वर्टेड इमेज जो कि स्मॉलर है, नज़र आ रहा है आपको ऑब्जेक्ट से, ठीक है. ये आपने याद रखना है. In simple lens camera, the distance between lens and film is fixed, which is equal to the focal length of the lens. बेटा ये सबसे important point है, इसके अंदर इसको याद रखना है कि जो हमने कहा ना कि आगे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर पीछे लेंस रखते हैं और फिर उसकी फिल्म होती है उसके अंदर उसका इमेज बनता है. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं कि जो डिस्टेंस है ना लेंस और फिल्म के दरमियान वो फिक्स्ड होता है. वो हम आगे पीछे नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स होता है और वो किसके इक्वल होता है जितनी उस लेंस की फोकल लेंथ होती है, ठीक है. ये याद रखना है अपना पॉइंट. अच्छा, यही तो डिफरेंस है कैमरे का और आई का. आई के अंदर एकोमोडेशन होती है, वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर सकती है, नज़दीक वालों को भी कर सकती है, लेकिन कैमरा जो उसकी फोकल लेंथ है सिर्फ उसको ही फोकस करता है, ठीक है. इन कैमरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f. आप देख रहे हैं ना 2f से भी आगे रखा होता है, तो क्या
क्या होगा, अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म्ड इन दिस वे। वो हमने 3 रेस पढ़ी थी ना, उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी, तो उसमें हमें याद है कि जब बियॉन्ड 2f रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इमेज किस तरह का बनता है और कहाँ बनता है। Now we have to see a slide projector. In a slide projector, a light source is placed at the center of curvature of a converging or concave mirror. ठीक है जी, आपको याद है ना कि मिरर कॉन्केव कन्वर्जिंग होता है, उसमें रियल इमेज बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, उसमें वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, लेकिन जो लेंस है उसमें कॉन्वेक्स जो लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है, जबकि जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स रखते हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग और कॉन्केव मिरर। द कॉन्केव मिरर इज मेड अप ऑफ 2 कन्वर्जिंग lenses that reflect the light, so all parts of the slide are illuminated with parallel rays। यानी रेस कौन सी आती है, पैरेलल, तो स्लाइड के तमाम पार्ट जो हैं वो रोशन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 2 लेंसेज जो हैं वो कन्वर्जिंग लेंसेज यूज़ करते हैं। रे डायग्राम में आप इसको देखेंगे, ये जो फिगर है, ये डायग्राम है, ये जो पड़ी हुई है आपके सामने पिक्चर, ये स्लाइड प्रोजेक्टर की पिक्चर है जिसको हम स्लाइड्स चलाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जिससे हमें इमेज नज़र आता है, फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें। अच्छा जी, आप देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर में कि इन अ स्लाइड प्रोजेक्टर अ लाइट सोर्स इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग और कॉन्केव मिरर। The concave mirror is made up of 2 converging lenses that reflect the light, so all parts of the slide are illuminated with parallel rays। ये डायग्राम आप देखिए, ठीक है, लाइट सोर्स, लाइट बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 कंडेंसिंग लेंसेज रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ना डायग्राम के अंदर। आगे फिर हमने स्लाइड रखी हुई है और उसके बाद हमने प्रोजेक्शन लेंस रखा हुआ है, जिसके अंदर से वो प्रोजेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद देखें शार्प इमेज बनता है। स्लाइड देखें इन्वर्टेड रखी हुई है, इमेज उसका हमें आपको सीधा नज़र आता है। ठीक है, तो ये लाइट सोर्स क्या करता है, डायरेक्ट द लाइट थ्रू द स्लाइड टू अ प्रोजेक्टर। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट उस पर लाइट फेंकता है, जिससे स्लाइड के तमाम पार्ट्स इल्यूमिनेट होते हैं और वो जो है बिल्कुल हमें क्लियर इमेज इसके अंदर नज़र आता है। The projection or converging lens provides a real, large and inverted image. It must be real to be projected on a screen. The slide object must be placed between f and 2f of projection lens so as to produce a real, large and inverted image. Because the image is inverted, the slide must be placed upside down and laterally inverted so we can see the image properly। यानी हम उसको पहले inverted रखते हैं ना, ठीक है ना, तो उसके कहता है कि स्लाइड जो है उसको मस्ट बी प्लेस्ड अपसाइड डाउन उसको रखना चाहिए ताकि इमेज जो है वो उसका फिर बिल्कुल जो है वो हमें सही तरह से नज़र आए। और आपने ये देखना है कि वो जो कॉन्केव मिरर है उसके साथ हमने लाइट सोर्स रखा हुआ है और उसके बाद 2 कंडेंसिंग लेंस रखे हुए हैं, फिर स्लाइड है, फिर प्रोजेक्शन लेंस है और फिर जो स्क्रीन है उसके ऊपर वो शार्प इमेज हमें रेड कलर वाला नज़र आ रहा है। तो बेटा ये जो सारी डायग्राम है ये उसकी आपने स्लाइड प्रोजेक्टर की रे डायग्राम है जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। Now students, we have to see photograph enlarger. In the case of photograph enlarger, object is placed at a distance of more than f but less than 2f. In this way we get a real inverted and enlarged image। बेटा ये डायग्राम के अंदर आप देखें एनलार्जर हेड है, आपको इसकी डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, फिर फिल्म और करियर है जिसके ऊपर वो इमेज होता है जिसको हमने एनलार्ज करना होता है, और नीचे देखें बेसबोर्ड इजल है, ठीक है, जिसके ऊपर उसका बड़ा इमेज आता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, एलिवेशन नॉब है जिसको इसको एलिवेट करता है, और फोकस नॉब है जो उस पर ज़्यादा कंसनट्रेट करता है, फोकस करता है। तो ये उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप उसकी रे डायग्राम देखेंगे जो कि उसमें आपको पता चलेगा कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है किसके, स्लाइड प्रोजेक्टर के। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। Now we have to see the working principle of a photograph enlarger is basically the same as that of a slide projector। जैसे कि उसके अंदर हमने वो मिरर रखा हुआ था, लाइट सोर्स रखा हुआ था, फिर आगे कंडेंसिंग लेंस था जो कि फिर उसका इमेज हमें देता है, लेकिन उसके लिए हमें अपसाइड डाउन रखना पड़ता था क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज देता है, तो अपसाइड डाउन रखेंगे तो वो फिर इसको इरेक्ट करेगा ना, डायग्राम में आपने देखा था। तो इसके अंदर देखिए ये बेसिकली क्या करता है, इट यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस अ रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द फिल्म ऑन फोटोग्राफिक पेपर। ये उसको एक मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा इमेज बनाता है। बाकी प्रिंसिपल इसका सारा सेम है, डायग्राम भी बिल्कुल सेम है। Now we have to take a review of the topic which we have discussed. We have discussed image location by lens equation, mean lens formula 1/f is equal 1/p plus 1/q.
Then we have seen sign conventions for lenses. We have seen that for convex or converging lens, P, Q and F was positive, but for concave or diverging lens, Q, mean image distance and focal length was negative. Then we have seen application of lenses by observing the structure and working principle of camera, slide projector and photograph enlarger. So you people are supposed to prepare all these topics thoroughly so that there would be no problem for you in your exams. Okay students, stay at home, stay safe. May Allah Almighty bless you always, all the time. So thanks and Allah Hafiz.